बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب رواه البخاري. محترم حضرات، حاضرین جمعہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو ہمارے نبی پر جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا. حاضرین گرامی، اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی انسان آیا اسے اس دنیا سے ضرور جانا پڑے گا. ایک دن آئے گا کہ وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان بھی کیا جائے گا کہ آج فلاں کا بھائی، فلاں کا باپ، فلاں کا بیٹا، فلاں کی ماں، فلاں کی بہن اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں. ایک دن آئے گا کہ ہم اپنی زندگی کا آخری سانس لے کر کے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ایک دن آئے گا کہ ہمارے اعزا و اقارب ہمیں نہلا دھلا کر کے 2 گز کفن میں لپیٹ کر کے قبرستان کے حوالے کر دیں گے. وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا. اور اس دن دنیا کے اندر انسان جو اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا وہ لوگوں کے سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے. جیسے کہ اس دنیا سے جب کوئی انسان رخصت ہوتا ہے تو یا تو وہ نیک ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یا وہ برا ہوتا ہے، لوگ اس کی برائی بھی کرتے ہیں. وہ انسان جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے نیک عمل کیا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرتا رہا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ اس کے غم میں آنسو بہاتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس وہ انسان
جو اس دنیا کے اندر ظلم کرتا تھا، ہاتھ اور اس کی زبان محفوظ نہیں تھے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ اس کی برائی کرتے ہیں۔ جب بھی اس دنیا سے کوئی انسان رخصت ہوتا ہے تو لوگ اس کی برائی کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا، مروا بجنازۃ فاثنوا علی خیرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازے کے پاس سے ہم لوگ گزرے، لوگ اس جنازے کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر دوسرے جنازے کے پاس سے ہم لوگ گزرے تو لوگ اس جنازے کی برائی کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں کا گزر دو جنازے کے پاس سے ہوا، ایک کی تعریف بیان کی جا رہی تھی تو دوسرے کی برائی کی جا رہی تھی، اور آپ نے دونوں کی چیزوں کو سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وجبت، واجب ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول، اس کی وضاحت کر دیجئے، آخر کیا چیز واجب ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس جنازے کے پاس سے ہم لوگ گزرے تھے، لوگ اس کی تعریف بیان کر رہے تھے، اس پر اللہ کی جنت واجب ہو گئی، اور جس جنازے کے پاس سے ہم لوگوں کا گزر ہوا تھا، لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین کی جہنم اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین کہتے ہیں کہ جب نیک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیتا ہے اور لوگ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب برا انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت کو ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی برائی کرتے ہیں، یہ اس کے برا ہونے کی علامت ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6512 کے تحت یہ روایت کو دیکھتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مستریح و مستراح منہ، اسے آرام مل گیا یا لوگوں کو اس سے آرام مل گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مل مستریح والمستراح منہ، اسے آرام مل گیا، لوگوں کو اس سے آرام مل گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا کے اندر جو بھی تکلیفیں اسے ملتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں بیماریوں کے صورت میں، یا کوئی اس انسان کے اوپر جو ظلم کرتا ہے، یہ پریشانیاں مومن کے اوپر جو بھی آتی ہیں، جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو مومن انسان اللہ رب العالمین کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس مومن انسان کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اسے آرام مل گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری میں مبتلا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی کو دیکھتی ہے، زاروں قطار رونے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری بیٹی لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، اے میری بیٹی مت رو، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی، کیونکہ اس دنیا کے اندر ایک مومن انسان کو جو بھی تکلیفیں اور جو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، دنیا کو چھوڑ کر جیسے ہی گیا وہ رب کی رحمت میں چلا گیا، اب اس کو کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں میری بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تیرے ابو کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ اسے آرام مل گیا، یعنی اگر وہ نیک ہے تو آرام میں چلا گیا،
रब की रहमत में चला गया, अब उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आइए दूसरे जुमले को देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुस्तरीहम मिन्हु, या इस आदमी से लोग आराम पा गए, लोग राहत में आ गए। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वल अब्दुल फाजिर यस्तरीह मिनहुल इबाद वल बिलाद वश्शजर वद्दवाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फासिक फाजिर इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होता है, जब दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो बंदे को राहत मिल जाती है। दुनिया के अंदर जमीन पर चलने वाले चौपाओं को राहत मिल जाती है। ये हरे भरे शजर और दरख्त जो नजर आ रहे हैं, इनको भी राहत मिल जाती है। आसमान में उड़ने वाले परिंदे को भी राहत मिल जाती है। वो कैसे? क्योंकि इस दुनिया के अंदर एक फाजिर इंसान जब गुनाह करता है और गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारता है, उस गुनाहों की नहुसत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अज़ाब नाज़िल करता है, वो अज़ाब ना कि सिर्फ उस बंदे के ऊपर आता है, बल्कि तमाम लोग उसके लपेट में आ जाते हैं। चाहे वो नेक हो या बुरा हो, सब लोग उसके लपेट में आ जाते हैं। ये शजर भी आ जाते हैं, इसी तरीके से शहर भी आ जाता है, इसी तरीके से ये परिंदे, ये जानवर भी उसके लपेट में आ जाते हैं। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बंदा जब गुनाह करता है या ज़कात देना बंद कर देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश को रोक लेता है, कहत साली में मुब्तला कर देता है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहत साली में मुब्तला करता है, तो ना कि सिर्फ उसे ही ये परेशानी लायक होती है, बल्कि दुनिया के अंदर रहने वाले मोमिन बंदे को भी ये परेशानी होती है। ये जानवर जो जमीन पर चल रहे हैं, ना जाने कितने ऐसे जानवर जो प्यास से तड़प करके उनकी जानें चली जाती हैं। ये दरख्त जो हरे भरे नजर आ रहे हैं, ये दरख्त सूख जाते हैं। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फासिक और फाजिर बंदा जब इस दुनिया से रुखसत होता है, दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो ना कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे उससे राहत पा जाते हैं, बल्कि उससे ये दरख्त, ये चौपाए, आसमान में उड़ने वाले परिंदे, तमाम के तमाम लोग उससे राहत पा जाते हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जनाजे को देखा था, तो देख करके कहा था मुस्तरीहुन व मुस्तराहुम मिन्हु, इसे आराम मिल गया। अगर ये नेक है तो रब की रहमत में चला गया। व मुस्तराहुम मिन्हु, अगर ये बुरा है तो लोगों को इस दुनिया के अंदर राहत मिल गई, अब वो चैनो सुकून के साथ रहेंगे। मेरे भाइयों, पहला इंसान बनने की कोशिश करो, दूसरा इंसान बनने की कोशिश मत करो। पहला इंसान बनो, ताकि जब इस दुनिया से रुखसत हो तो लोग तुम्हारे गम में आंसू बहाए। ऐसे जैसे कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, हमला किया जाता है, शहीद हो जाते हैं। जब मदीना के अंदर ये खबर फैला दी गई, तो लोग कहते हैं, तारीख उठा करके देखिए, उनके ताल्लुक से ये चीज मिल जाएगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया छोड़कर जब चले गए, हमला किया गया, शहीद हो गए। जब मदीना के अंदर खबर फैला दी गई, औरतें अपने घरों के अंदर सिसक कर ऐसे रो रही थी जैसे इनका करीबी बेटा, इनका बेटा या करीबी रिश्तेदार इंतकाल हो गया हो। ऐसे बनने की कोशिश करो, फिरऔन की तरह बनने की कोशिश मत करो। दुनिया के अंदर जुल्म मत करो, दुनिया के अंदर सताने की कोशिश ना करो, फिरऔनियों की तरह अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश मत करो, बल्कि नेक बनने की कोशिश करो। दुनिया से जब रुखसत हो तो तुम्हारे गम में आंसू निकले, तुम्हारे लिए तारीफ निकले, तुम्हारे लिए बुराई ना निकले। फिरऔन की तरह इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने की कोशिश ना करो। सूरह दुखान उठा करके देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सूरत के अंदर एक जालिम बादशाह फिरऔन का जिक्र किया है। फिरऔन जो इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, ना कि ये बंदों के साथ जुल्म किया करता था, बल्कि रब के साथ ये शिर्क किया करता था। यहाँ तक कि वो अपने आप को रब मानता था। ये ना जाने कितने बच्चों को कत्ल भी करवाया था, लोगों को भी कत्ल करवाया था। ये फिरऔन अपने आप को रब मानता था। इसके सामने लोग आकर के सजदा किया करते थे। ये इतना बड़ा जालिम बादशाह था कि रब ने ना एक की सिर्फ एक नबी को भेजा, बल्कि दो नबियों को इसके पास भेजा, ताकि
تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لے. جب یہ دونوں نبی اس کے پاس جاتے ہیں سمجھانے کے لیے, یہ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. دریا کے کنارے پہنچتا ہے, اسے معلوم نہیں کہ سامنے جو لشکر جا رہی ہے اس لشکر کی حفاظت کرنے والا رب العالمین کی ذات ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دیا, لیکن فرعون اسی دریا کے اندر اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین سورہ دخان کے اندر کھینچ رہا ہے. کم ترکو من جنات و عیون, یہ فرعون اور فرعون کا لشکر بہت سارے باغات اور چشمے اس دنیا کے اندر چھوڑ کر چلا گیا. وزروع و مقام کریم, کھیتیاں اور اچھے ٹھکانے بھی اس کے پاس تھے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین, عیش و عشرت کی جگہیں بھی تھی. یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہوا. کذالک واورثناها قوما آخرین, رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے بعد دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین, جب یہ اس دنیا کو چھوڑ کر گیا یہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس پر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا. یعنی اتنا بڑا یہ ظالم تھا کہ اس کے غم میں نہ آسمان نے آنسو بہایا نہ زمین نے آنسو بہایا. یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے, کیا بندہ جب اس دنیا سے چھوڑ کر جاتا ہے تو کیا یہ آسمان اور یہ زمین بھی آنسو بہاتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو پتا چل جائے گا کہ نیک بندہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے نہ کہ صرف اس کے قریبی رشتہ دار آنسو بہاتے ہیں, یہ زمین بھی روتی ہے, یہ آسمان روتا ہے. اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو کیا اس کے غم میں یہ آسمان اور زمین روتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس دنیا کے اندر کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسمان میں ایک دروازہ بنا دیتا ہے اور اس دروازے کے دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک پارٹ سے اس کے لیے دنیا کے اندر رزق اترتا ہے, دوسرے پارٹ سے جو دنیا کے اندر نیک عمل کرتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, یہ نیکیاں اس پارٹ سے اوپر چڑھتی ہیں. اور جب نیک بندہ انتقال کر جاتا ہے وہ نیکیاں اس دروازے سے داخل ہونا بند ہو جاتی ہیں, آسمان رونے لگتا ہے. یہ زمین جہاں ہم سجدے کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, نیک بندہ جب انتقال کر جاتا ہے یہ زمین اس بندے کے یاد میں روتے ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب نیک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ آسمان اور زمین یہ 40 دن تک اس کے غم میں آنسو بہاتے ہیں. فرعون جو بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا, نیک عمل تو کیا ہی نہیں, اس کی نیکیاں آسمان پر کیسے چڑھتی؟ آسمان اس لیے نہیں رویا, زمین پر اس نے کبھی نیک اعمال کیا ہی نہیں, یہ زمین اس کے غم میں کیسے آنسو بہاتے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین, یہ آسمان نہ رویا نہ زمین رویا اور نہ اسی طریقے سے اسے مہلت دی گئی کیونکہ یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک بننے کی کوشش کریں, جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اعزاء و اقارب کے ساتھ یہ زمین اور یہ آسمان بھی تمہارے غم میں یہ آنسو بہائے. حضرت عبداللہ بن ادریس رحمہ اللہ, ان کے انتقال کا وقت قریب ہے, ان کی بیٹی ان کے پاس آتی ہے اور بیٹھ کر کے اپنے باپ کے غم میں یہ آنسو بہا رہی ہے. عبداللہ بن ادریس رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی بیٹی مت رو, اس گھر کے اندر جس گھر سے تیرے باپ کا جنازہ نکلنے والا ہے, اس گھر کے اندر تیرے باپ نے 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ نہیں بلکہ 4000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے. اس گھر کے اندر تیرے باپ نے کبھی نافرمانی نہ کی. اب ایسا باپ جب اس گھر سے جنازہ نکلے گا پھر اس گھر کے اندر اس کی نافرمان اولادیں, جس گھر کے اندر باپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرتا تھا, جس گھر کے اندر باپ بیڈ پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا, جس گھر کے اندر باپ بیٹھ کر کے اللہ کی یاد میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتا تھا, اس گھر سے جب باپ چلا جاتا ہے اس کی نافرمان اولادیں اسی
ले करके वो टीवी देखती है, वो जमीन नहीं रोएगी, वो आसमान नहीं आंसू बहाएगी, तो क्या करेगी? इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनदरीन। ये फिरऔन जब इस दुनिया को छोड़कर चला गया, ये इतना बड़ा जालिम बादशाह था कि इसके गम में ना जमीन रोया ना ये आसमान रोया। इसलिए ऐसे अमल करके इस दुनिया से रुखसत हो ताकि तुम्हारे गम में, तुम्हारे अइज़्ज़ा व अकारिब के साथ ये जमीन और ये आसमान तुम्हारे गम में निढाल हो जाए। मेरे भाई करो कि जन्नत में तुम्हारा इंतजार हो रहा हो। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और वो आकर के कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे घर के करीब में एक आदमी के बाग है, दरख्त है, जब मैं अपने घर का वो दीवार उठाता हूं तो टेढ़ी हो जाती है। ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने उस आदमी से वो दरख्त खरीदना चाहा लेकिन वो बेचने के लिए तैयार नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी, चलिए और सिफारिश कर दीजिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करने के लिए उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस दरख्त को इस आदमी को दे दो ताकि ये अपने घर का दीवार उठा ले, सीधी उठा ले। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ये गवाही देता हूं कि जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दरख्त तैयार करेगा। वो आदमी देने के लिए तैयार ना हुआ। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सारा मंजर देख रहे थे। कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या ये ऑफर सिर्फ इनके लिए है या सबके लिए है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबके लिए है। हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बागीचा था। बागीचे के अंदर एक दरख्त नहीं बल्कि सैकड़ों दरख्त थे। उस आदमी के पास जाकर के कहते हैं, मेरे भाई, मेरा पूरा बागीचा ले लो, इस एक दरख्त को दे दो। वो बागीचा ले लिया जिसमें कई दरख्त थे, उस एक दरख्त के बदले में सारा बागीचा उसको दे दिया। फिर उस एक दरख्त को उन्होंने ले लिया। नबी की खिदमत में हाजिर होकर के कहते हैं, मैं उस आदमी को ये दरख्त देने के लिए तैयार हूँ। वही अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इंतकाल कर जाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजा में शरीक होते हैं, जनाजा अदा करते हैं, कौम में से एक आदमी कहता है, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज सुने कि अल्लाह के नबी कह रहे थे, अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत अबू दहदा ने जो अपनी जिंदगी में एक नेक अमल किया था वो मुझे याद आ रहा है। उन्होंने एक दरख्त के बदले में पूरा बागीचा दे दिया था। इनके इंतकाल के बाद ये जन्नत में वो दरख्त के खोसे लटक रहे हैं, उसका इस्तकबाल के लिए तैयार है। आप अंदाजा लगाइए कि जन्नत उन लोगों के लिए किस तरीके से इस्तकबाल के लिए तैयार थी जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अपने बागीचे को एक दरख्त के बदले में उन्होंने बेच दिया था महज इसलिए कि उन्हें जन्नत मिल जाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुआ करते थे। ऐसे ही अमल करके जाओ ताकि जन्नत तुम्हारा इंतजार करे, ताकि इस दुनिया से रुखसत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जन्नत ये तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हो। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं, ऐसे ऐसे वाकयात आपको मिल जाएंगे जिन्होंने इस दुनिया के अंदर रह करके जिंदगी में कभी अपने ईमान का सौदा न किया। दुनिया की मुसीबतें और परेशानियों को उन्होंने झेल लिया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उन्होंने ईमान का सौदा न किया, उन्होंने अपने ईमान को न बेचा, जिंदगी भर हक पर कायम रहे। आपको मुहद्दिसीन में से एक मुहद्दिस का नाम इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का नाम मिल जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह जो अपने जिंदगी में बादशाह वक्त के जुल्म का ये शिकार हो गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के जमाने में एक फितना उठा मसले खल्क़े कुरान का कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का मखलूक है। इस सिलसिले में बहुत बड़ा फितना उठा। न जाने कितने उलमाए किराम को जिन्होंने ये कहा अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, उनको पकड़ करके कत्ल कर दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। न जाने कितने उलमाए किराम ने बादशाह के डर की वजह से उन्होंने फैसला बदल लिया कि कुरान अल्लाह की कलाम नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक
है, ये फैसला बदल करके वो बादशाह के जुल्म और सितम से बच गए। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह वो अपने फैसले से ना बदले, वो अपनी ज़बान से कहते रहे अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की मखलूक नहीं। बादशाह आता था, आए अहमद तुम अपने फैसले को बदल लो, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार हूँ। इमाम अहमद रहमतुल्लाह बदलने के लिए तैयार नहीं, कहते हैं तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से दलील पेश करो, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के सामने ना दलील पेश की गई, ना वो अपने फैसले से बदले। अब वो जुल्म और सितम की बारी आती है, बादशाह वक्त जल्लादों को बुलाता है और जल्लादों को उनके पास बुलाता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के ऊपर एक जल्लाद आता था, अपनी पूरी ताकत के साथ दो मरतबा कोड़ा लगाता था। दूसरा जल्लाद आता था, दो मरतबा वो कोड़ा लगाता था। तीसरा जल्लाद आता था, वो दो मरतबा कोड़ा लगाता था, वहां से हट जाया करता था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के ऊपर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, जो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के ऊपर जो कोड़े बरसाए गए, अगर किसी हाथी के ऊपर मार दिया जाता, वो हाथी भी बर्दाश्त न कर पाता। ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह दीन के खातिर जो बादशाहों के डर की वजह से जो अपने फैसले को ना बदला, वही इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह जब इंतकाल कर जाते हैं, नमाज जनाजा के लिए सैलाब उमड़ आता है। लोगों ने अपने घर का दरवाजा खोल करके कहा, आओ आज एक नबी के हदीस की हिफाजत करने वाली की शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, उनकी नमाज जनाजा अदा करने वाले की नियत रखने वाले, उनकी नमाज जनाजा अदा कर लो, मेरे घर का दरवाजा खुला है, वजू कर लो और उनकी नमाज जनाजा अदा कर लो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की नमाज जनाजा में जिनकी तादाद को गिना जा चुका, करीब वो 10 लाख के करीब थे, यानी 10 लाख के करीब उनकी नमाज जनाजा में लोगों ने शिरकत की। और न जाने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने कश्तियों में नमाज जनाजा अदा कर ली। ये मर्द मुजाहिद वो लोग थे जिनके बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के जमाने में थे। उन्होंने अपनी निगाहों से फितने खल्के कुरान का मुशाहिदा किया था और जिस फितने को कुचलने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह डटे रहे। अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद थे, अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर अल्लाह ने इस दीन की गलबा व हिफाजत के लिए जिन दो लोगों को चुना, तीसरा कोई नजर नहीं आ रहा है। एक उस वक्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, तो ना जाने कितने लोगों ने दीन इस्लाम को छोड़ करके कुफ्र का रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया, इर्तिदाद का शिकार होने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डट कर मुकाबला किया और उस फितने को खत्म करने की कोशिश की। ये फितना उसी वक्त खत्म हो गया। और जब बारी आती है खल्के कुरान के ताल्लुक से, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने डट करके मुकाबला किया। इन कारनामों को देखने के बाद अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इनके अजीम कारनामे को वो एतराम करते हैं कि इस दीन की खिदमत के लिए, इस दीन की गलबा व हिफाजत के लिए इस कायनात के अंदर रब ने जिन दो लोगों को चुना, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह थे। वो जब इंतकाल कर गए, तो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के नमाज जनाजा में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि करीब 10 लाख लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। ये वो लोग थे जो इस दुनिया के अंदर दीन पर कायम थे, जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर लिया, ये सोच करके कि इस दुनिया से रुखसत होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, बंदा दुनिया की मुसीबतें और परेशानियां झेलने के बाद मोमिन बंदे का जब इंतकाल होता है, रब की रहमत में चला जाता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ये सारी परेशानियां झेल ली, लेकिन अपने मसले से ना हटे, उसी पर वो कायम रहे। ऐसे बनने की कोशिश करो, जब इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारे जनाजे में मग़फ़िरत के लिए लोग लाइन लग जाए, ताकि तुम्हारे जनाजे के तुम्हारे लिए मग़फ़िरत कर सके, रब से दुआ कर सके। ऐसे बनने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर जो कोई भी इंसान आया,
मरना उसे जरूर है, मौत से कोई भाग नहीं सकता है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं मिल सकती है। एक मोमिन इंसान वो होता है जो जिंदगी और मौत के बारे में रब के हवाले कर देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी और मौत का मालिक है, इसीलिए वो मौत को उसकी नजर में कोई हैसियत नहीं होती है। लेकिन जो इंसान इस दुनिया के अंदर फिस्को फजूर में अपनी जिंदगी गुजारता है, रब की नाफरमानियों में अपनी जिंदगी गुजारता है, उसके नजदीक ये मौत बहुत ही डरावना होती है, वो मौत से भागने की कोशिश करता है। एक मोमिन इंसान रब से मुलाकात करने के लिए वो ख्वाहिशमंद होता है कि मौत आ जाए और मैं रब से मुलाकात करने के लिए जल्दी करूं। रब से मुलाकात का वक्त जब सुनता है तो वो खुश हो जाता है, ऐसे जैसे हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाप के इंतकाल के वक्त जब उनके पास बैठी हुई थी और रो रही थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कहा था, मेरी बेटी मत रो, मेरे बाद इस घर के अंदर अगर किसी का जनाजा उठेगा तो वो तुम होगी, तुम ही होगी जो मुझसे सबसे पहले मुलाकात करोगी। मौत का मरहला उन्होंने सुना कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में आपके बाद मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गमगीन नहीं हुई, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मैं रब से मुलाकात करने वाली हूँ। इसलिए इस दुनिया के अंदर एक मोमिन बंदा जो रब पर ईमान रखता है, उसके नजदीक मौत की कोई हैसियत नहीं होती है। मौत के बाद आने वाले तमाम मराहिल के लिए वो तैयारियां करके रखता है, इसलिए वो हमेशा तैयार रहता है कि मौत आ जाए, रब से मुलाकात की उम्मीद लिए वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। मेरे भाइयों, एक मोमिन इंसान के नजदीक और एक काफिर इंसान के नजदीक मौत की हैसियत क्या होती है, आइए एक वाक़े से देखते हैं। हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिन्होंने ज़माने जाहिलियत और ज़माने इस्लाम दोनों पाया, हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरब की मशहूर शायरा थी। जब ये मक्का के औकास बाजार में जब अशआर पढ़ती थी, भीड़ लग जाया करता था, इनके बराबर कोई नहीं था, इतनी बड़ी शायरा थी। इनके पास दो भाई थे, मुआविया और सख्र। मुआविया को कबायली जंगों में पकड़ करके इसको कत्ल कर दिया गया। हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने भाई की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो इधर उधर घूम रही है, बेबसी के आलम में इधर उधर घूमती थी, रोती थी, आंखों से आंसू बहाया करती थी। अभी भाई का गम उनके अंदर से नहीं निकला था, सख्र को भी पकड़ करके लोगों ने कत्ल कर दिया। सख्र ऐसा इंसान था कि जिसकी इब्तिदा बड़े बड़े सरदार किया करते थे। हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों भाई को लोगों ने कत्ल कर दिया। सख्र को जब कत्ल किया, हज़रत खंसा ज़ारो कतार रो रही है। सुबह के वक्त जब सूरज तलू होता था, सूरज को देखती थी, ज़ारो कतार रोती थी कि ऐ सूरज तो क्यों तलू होता है। शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होता था, सूरज को देख करके रोने लगती थी, ऐ सूरज जब तू निकलता है, जब तू गुरूब होता है, मुझे मेरे भाई सख्र की याद आती है। बेचैनी के आलम में इधर उधर घूमती थी, ज़ारो कतार रोती थी। ये उस वक्त की हालत थी जब ये कुफ्र में थी। लेकिन सन 8 हिजरी में हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब ये इस्लाम ले आई, इनके पास 4 बेटे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक बहुत बड़ी जंग हुई। अपने चारों बेटों को बिठा करके नसीहत करती है, आए मेरे बेटे, जंग होने वाली है, जंग से पीछे मत हटना, वहां लड़ाई करना, गर्चे शहीद हो जाना, लेकिन पीछे हटने की कोशिश न करना। हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चारों बेटे, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो जंगे कादिसिया के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ी जंग थी। चारों बेटों को नसीहत करके, उनके अंदर नसीहत करके उनको भेज देती है। वो चारों बेटे उस जंग में जाते हैं, एक एक करके वो शहीद हो जाते हैं। अब खबर दी जाती है हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 4 बेटों की शहादत एक ही दिन खबर दी गई। हज़रत खंसा अपने हाथ को उठा करके कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी फी क़त्लिहिम, अल्लाह का शुक्र है जिसने उनकी शहादत की वजह से मुझे इज्जत बख्शी। आप अंदाजा लगाइए, कुफ्र की हालत में थी, भाई का जब कत्ल कर दिया गया,
उन्हें ये बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। गांव में, शहर में वो घूमती थी और रोती जाती थी, लेकिन जब इस्लाम में आई, जब इस्लाम ले आई और जब उनके चारों बेटों की शहादत के बारे में बतलाया गया, तो वही उनकी शहादत को सुनने के बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ये एक मोमिन और काफिर की पहचान होता है। मोमिन इंसान रब की क़ज़ा व क़दर पर ईमान रखता है और उसे ये ईमान होता है कि मौत और जिंदगी ये रब देने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, इसलिए उसके नजदीक मौत की कोई हैसियत नहीं होती है, वो हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया मोमिनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौत को याद करने वाला और मौत के बाद आने वाले तमाम मराहिल के लिए वो तैयारियां करने वाला है। मेरे भाइयों, खुलासा यही है कि हम में से जो कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर आया, हर एक इंसान को इस दुनिया से जरूर जाना पड़ेगा, इस दुनिया को छोड़कर जरूर जाना पड़ेगा। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर बचने वाला नहीं है, अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या रियाया, या मर्द हो या औरत, हर एक इंसान को इस दुनिया से जाना पड़ेगा। जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ जो तोड़ रहे थे, जो अपने आप को रब मानते थे, जो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर समझते थे, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस दुनिया के अंदर जो नेक इंसान थे, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हर एक इंसान को इस दुनिया से जरूर जाना पड़ेगा। एक दिन आएगा जो हम अपनी जिंदगी का आखिरी सांस गिन करके इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। एक दिन आएगा कि हमारी आंखें खुली होंगी लेकिन ज़बानें बंद होंगी, सांस रुक जाएगा, लोग अपने कंधे पर लाद करके कब्रिस्तान की तरफ ले जाएंगे। बहुत से ऐसे होंगे तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा लेकिन वो अपने कारोबार में मसरूफ होंगे। साथ तुम्हारे कौन जाएगा? दुनिया के अंदर जो नेक अमल किए हो, दुनिया के अंदर जो अच्छा अमल किए हो, जो नमाज़ें अदा किए हो, जो कुरान की तिलावत किए हो, जो यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों की मदद किए हो, यही तुम्हारे साथ कब्र के अंदर जाने वाली है। वो साथ छोड़ जाएंगे। जिस माल के लिए तुम मेहनत करते हो, जिस दुनिया कमाने के लिए तुम जिंदगी भर मेहनत करते रहे, जिस औलाद के लिए प्रॉपर्टी बनाते रहे, वो औलाद, वो माल इसी दुनिया के अंदर रह जाएगा, साथ तुम्हारे नेक अमल जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया की जिंदगी को गनीमत समझते हुए रब को राजी करने की कोशिश करें, आखिरी दिन के लिए तैयारियां करें, ताकि आखिरी दिन जब इस दुनिया से हम रुखसत हो तो उस दिन लोग तारीफ करें, बुराई ना करें। उस दिन लोग तुम्हारे मग़फ़िरत के लिए भीड़ लग जाए, तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, उस दिन तुम्हारी बुराई ना करें। इस दिन के लिए तैयारी करने की कोशिश करो और मौत के बाद आने वाले तमाम मराहिल के लिए तैयारी करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बार इलाहा तो हमें मौत और मौत के बाद आने वाले तमाम मराहिल के लिए तैयारियां करने की तौफीक दे। चाहे वो कब्र का मरहला हो, चाहे वो क़यामत के दिन हिसाब व किताब हो, चाहे वो पुल सिरात पार करना हो, तमाम मराहिल के लिए इस दुनिया के अंदर तैयारी करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, तो हमें नेक बना, सालेह बना, नमाजी बना, दीनदार बना, दीन पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, जो हमारे नौजवान फितने का शिकार हैं, ऐ अल्लाह तो उन्हें फितनों से बचा ले। ऐ अल्लाह, जो हमारी कौम की बहनें और बेटियां जो फितने का शिकार हो रही हैं, उन्हें तो सीधे रास्ते पर चला। ऐ अल्लाह, इस दुनिया के अंदर हमारे मुसलमान भाई जो परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर कर दे, उन्हें शिफा अता कर। आमीन व आखिरु दावाना। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।